وہ ایگزام پاس ہو کر ماشاءاللہ اس نے ایک اتہاس رچا ہے. اب وہ لڑکی جس کے پاس کوئی سپورٹ ماں باپ کا نہیں ہے, کوئی سپورٹ سوسائٹی سے نہیں مل رہا ہے, کوئی سپورٹ این جی او سے نہیں مل رہا ہے, کچھ پیسے کبھی کبھار اس کو کرن بیڑی جو آئی پی ایس آفیسر ہے نا, جو سب جانتے ہیں, اس سے ملا کرتا تھا اس کو سپورٹ. لیکن منزل کو چھو کر اس نے پورے دنیا والوں کو میسج دیا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے امیر گھرانوں میں پیدا ہونا ضروری نہیں ہے, کامیاب ہونے کے لیے اچھے اداروں میں ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے, کامیاب ہونے کے لیے سوسائٹی کی مدد لینا ضروری نہیں ہے, کامیاب ہونے کے لیے ارادے کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے پاس میں وہ ارادہ تھا. سننے میں کتنا آسان لگ رہا ہوگا, ایک جوان لڑکی اسلم میں اکیلے زندگی گزار رہی ہے اور روٹی بنا کر 3 دن پانی میں ڈبو کر کھا رہی ہے. اس نے گریجویشن بھی کیا, اس نے پوسٹ گریجویشن بھی کیا, اس نے 2-3 کنٹریز میں جا کر لیڈرشپ کی ٹریننگ بھی لی ہے, اور پھر وہ آئی اے ایس آفیسر جو ٹف ایگزام ہوتا ہے وہ ایگزام بھی اس نے 2016 میں کلیئر کیا ہے. اب ایک بہت بڑے آفیسر کے طور پہ وہ دلی میں یا پھر پتہ نہیں کہاں وہ اپنے سروسز انجام دے رہی ہے. تو یہاں جتنے بھی نوجوان بچے بچیاں مجھے سن رہے ہیں, آپ مشکل ہاں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ سننے میں بڑا آسان لگتا ہے لڑکوں کے لیے, لیکن لڑکیوں کے لیے اور کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس نے کر دکھایا ہے. لہٰذا جتنے نوجوان یہاں تشریف فرما ہیں, جتنے لڑکیاں میری اسپیچ کو سن رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں, ان کے لیے بہت بڑا انسپریشن ہے. ہم انسان جو چاہے وہ اچیو کر سکتے ہیں, لیکن یاد رکھو پیارے نوجوان جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. یہ سنا آپ نے کبھی؟ ہاں جی, ہاتھ اٹھائیں, کتنے لوگوں نے سن رکھا ہے؟ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اب اگر آپ کے دلوں میں امنگیں ہیں, کچھ پانا چاہتے ہیں, آپ بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں, تو آپ کو کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. اور وہ کھونے میں سب سے پہلی چیز سوشل میڈیا جو ایڈکشن ہے نوجوان بچوں میں, اسے آپ نے کھو دینا ہے, اسے دور کرنا ہے آپ نے. یہ جو موبائل ہے, انسان روزانہ 4 سے 6 گھنٹے نوجوان بچے گزارتے ہیں. اب جو بندہ 6 گھنٹے روزانہ فون پر گزار رہا ہے تو اس کے 180 گھنٹے ایک مہینے میں ہوئے, اور قریب 2160 اس کے 1 سال میں ہوئے, اور قریب 25,000 گھنٹے اس کے 10 سال میں ہوئے. یعنی ایک 15 سال کا نوجوان لڑکا اگر اس کو 10th پاس ہونے پر والد فون گفٹ کرتا ہے اور 25 سال تک اس کے 10 سال ہو جاتے ہیں, تو وہ 10 سال میں وہ کم از کم 25,000 گھنٹے وہ فون پر گزارتا ہے. اور وہی 25,000 گھنٹے اگر وہ کتابوں میں اور اپنے اساتذہ کے ساتھ اگر وہ بتانا شروع کر لے, تو میں پورے ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایسے 1 2 3 4 5 نہیں, ہزاروں مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوں گے اس دیش میں انشاءاللہ. کئی ڈاکٹر اے پی جے کلام پیدا ہوں گے, جو سائنٹسٹ بنیں گے, جو چاند پر گئے, ان میں ہمارے قوم کے بچوں کے نام ہوں گے انشاءاللہ. جو ناسا ہے, جو بہت بڑا آرگنائزیشن ہے, اس میں ہمارے بچے بڑی تعداد میں جانا شروع کریں گے. اور یاد رکھیں, ہمیں
इस दुनिया में भी कामयाब होना है और आखिरत में भी हमें कामयाब होना है, कि सिर्फ हम लोग आखिरत में ही कामयाब होंगे, दुनिया में कुछ नहीं करेंगे, ऐसा अल्लाह ने नहीं कहा, रेस्ट्रिक्ट नहीं किया हमें। कामयाब होने से अल्लाह ने मना नहीं किया, पैसे बनाने से अल्लाह ने रोका नहीं, बिलियंस ऑफ रुपीज आप लोग बना सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने कंडीशन रखा कि अकले हलाल की कमाई होनी चाहिए, धोखा फरेब उसमें ना हो, उसके बाद आप हर चीज कर सकते हैं। जंगलों में जाएं, आप रोजाना हजारों सजदे करें, लेकिन माशरे में रहकर सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ लें आप लोग, और तिजारत में इतने मसरूफ हो जाएं, बिलियनियर बन जाएं, तो हो सकता है कि अल्लाह आपको ये पूछे भी ना कि बेटा तूने तहज्जुद की नमाज कभी क्यों नहीं पढ़ी। लेकिन फराइज तो फराइज है, फर्ज की नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा नहीं किया जंगलों में जाए और गुम हो जाए अल्लाह की याद में, बस इबादत ही करते जाए। लेकिन माशरे में एक सजदा जो बंदा करता है वो जंगलों में 1000 सजदे करने से भी ज्यादा अफजल होता है, क्योंकि माशरे में चैलेंजेस होते हैं, माशरे में प्रॉब्लम्स होते हैं। ये प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व करते हुए और दूसरे लोगों के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हुए हम अपनी जिंदगी में मशगूल रहते हुए जो चाहें वो पा सकते हैं, शर्त ये कि वो हलाल हो। तो इसीलिए मैं तमाम तलबा से कहता हूं कि आप लोग यहां भी कामयाब होना है, आखिरत में भी कामयाब होना है, और यहां कामयाब होना है तो सोशल मीडिया से आपने बचना है। और हर प्लेटफॉर्म से मैं कहता हूं कि आपको आबाद और आपको बर्बाद करने वाले आपके वालिदैन नहीं होते हैं, आपके असातिज़ा नहीं होते हैं, आपके दोस्त ही होते हैं। वो दोस्त आपको मदरसे में भी मिलेंगे, अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में भी मिलेंगे, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज भी मिलेंगे, यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में भी मिलेंगे। क्योंकि एक बंदा क्लास रूम में 40 बच्चे होते हैं तो बमुश्किल 3 या 5 बच्चों से ही दोस्ती करता है। वो 3 और वो 5 जो बच्चे होते हैं वो आपके बच्चे को आबाद भी कर सकते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं। तो ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे किन से दोस्ती करते हैं, किन के साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि दे कैन मेक हिम एज वेल एज ब्रेक हिम। वो आपको बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, आबाद भी कर सकते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि उसी के साथ उसकी 10 साल जिंदगी हो जाती है, यारी हो जाती है। अगर बाप हाफिज कुरान भी हैं, आलिम दीन भी है, शेखुल हदीस भी है, फजीलतुल शेख है और क्या क्या है, लेकिन उस बंदे का लड़का अगर ऐसे बड़े टॉप इदारे में भी पढ़ रहा हो, लेकिन दोस्ती 3 ऐसे बंदों से किया है उसने जो झूठ बोलते हैं, जिना करते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स में मुलविस है, और इस रुए जमीन में जितने गुनाह हो रहे हैं वो 3 नौजवान तमाम गुनाहों में मुलविस है, और उन 3 नौजवानों से दोस्ती करता है आपका लड़का, तो फिर आपके लड़के का मुस्तकबिल भी वैसा ही होने वाला है। जो अच्छे इदारे तलाश करते हुए घूमते हैं ना वालिदैन, ईद आती है तो अच्छे कपड़ों की तलाश में गुजरते हैं वालिदैन, दुकानों में जाते हैं, तलाश करते हैं, अच्छे इदारे तलाश करते हैं, वैसे ही नजर रखना वालिदैन। अल्लाह ने 2 आंख दी हैं, एक आंख से मोहब्बत करें और एक आंख से नजर रखें कि बच्चा कहां बैठ रहा है, कहां उठ रहा है, किसके साथ घूम रहा है, क्या हरकतें कर रहा है। उन हरकतों पे आपकी नजर नहीं है। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं कि बाप को दोस्त की तरह रहना चाहिए। अगर बाप को दोस्त की तरह रहना है तो रहें, लेकिन लिमिटेशंस। बाप को स्ट्रिक्ट भी होना, बाप से बच्चे को डर भी होना, नहीं तो फिर हाथ से अगर निकल जाता है ना, बिगड़ने के लिए एक पल काफी है। एक लड़का 98% 10th में ले आया, 97% 11th में ले आया, 95% 12th में ले आया, और हिंदुस्तान का सबसे टॉप इदारा राजस्थान में ही है, एलन इंस्टीट्यूट है कोटा में, जो नीट की ट्रेनिंग देता है। हजारों बच्चे पढ़ने आते हैं और वो तय डॉक्टर था, तय था। अब जो बंदा 98% ले आ रहा वो तो नीट आसानी से निकाल लेगा, लेकिन वहां जाने के बाद उसने एक लड़के से दोस्ती की जो लड़का पहले से ड्रग एडिक्टेड था, और ये इतना ड्रग एडिक्टेड हो गया है उसको पता नहीं 150 भी मार्क्स नहीं आए,
नीट में, उसके हाथ कांपने लगे, इतने सिगरेट पीने लगा। 30, 40, 50 सिगरेट पीने लगे नौजवान बच्चे। उम्र क्या है? 16 साल, 17 साल के बच्चे 30-30 सिगरेट पी रहे हैं, और बाप को पता ही नहीं। बाप खुश है कि हिंदुस्तान के बेहतरीन इदारे में मेरा बच्चा तालीम हासिल कर रहा है, लेकिन वह क्या कर रहा है ये नहीं पता है। इसीलिए नजर का होना बहुत जरूरी, नजर रखना बच्चों पर, बच्चियों पर। बुर्का पहन के आराम से ग्लव्स पहन के बच्ची अपने घर से निकलती है कॉलेज को, लेकिन वाकई क्या कॉलेज जाती है या कॉलेज में एक सेशन अटेंड करके पार्कों में घूमती है, ये वालिदैन को खबर ही नहीं है। तो आपने नजर रखना है और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना है। इस दुनिया में दो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है। एक, ईमान का बचाना। ईमान है भी नहीं, ये तो अल्लाह ही जानता है। सबसे बड़ा चैलेंज ईमान का बचाना है। दूसरा बड़ा चैलेंज इस दुनिया में, इस दौर में है अगर, तो वो तरबियत है बच्चों की। जो वालिदैन 95% वालिदैन को नहीं पता कि तरबियत क्या चीज है और कैसे की जाती है। इसीलिए बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, और 10 में 7 पेरेंट्स आज बहुत परेशान हैं, और वालिदैन भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। वालिदैन को नए नए बीमारियां आ रही हैं, और ये बीमारियों से बचना है तो नजर रखें और बच्चों को मोटिवेट करें। और बच्चों से भी अपील करता हूं मैं, शौक पैदा करें। एक वक्त आएगा पूरी दुनिया घूमने वाले बन जाएंगे। जवानी में जो शौक होता है ना कि अच्छे कपड़े पहने, मेरे पास एक बाइक हो, मेरे पास अच्छे कपड़े हो, मेरे पास अच्छा फोन हो, आप सिर्फ जवानी के 5, 7 साल, 15 साल के बाद अगर किताबों में गुजारेंगे और अच्छे इरादे के साथ अच्छे इदारों में गुजारेंगे, तो सिर्फ आपके पास आईफोन नहीं होगा, आपके घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग को आप आईफोन ऐसे गिफ्ट करोगे जैसे एक दोस्त चॉकलेट गिफ्ट करता है 10 बच्चों में। इतना आसानी से आप अपने खानदान वालों को तोहफे देने वाले बनेंगे। सिर्फ 5 से 7 साल अगर एक नौजवान बच्चा इरादा लेकर बेहतरीन इदारे में तालीम हासिल करता है, तो फिर वो अपने मोहल्ले को सुधार सकता है, अपने गांव को सुधार सकता है। ये पहला विजिट है। मैं इरादा करता हूं कि मौलाना हुज़ैफा साहब के साथ जुड़ा हूं, तो इंशाअल्लाह यहां आना जाना रहेगा। कोशिश करता हूं कि मैं फिर आऊं, लेकिन ये मदरसे से जितने भी जिम्मेदारान हैं, बिलखुसूस रईसुद्दीन साहब से मैं अपील करता हूं कि यहां बेहतरीन जबरदस्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला एक स्कूल भी कायम करें, ताकि यहां के बच्चे मैथ्स में भी परफेक्ट हो, साइंस में भी परफेक्ट हो, और जो मदरसे में पढ़ाया जाता है वो तमाम सब्जेक्ट्स में भी परफेक्ट हो। जितने अल्लाह के बंदे ऐनक लगाकर, चश्मा लगाकर मुझे देख रहे हैं, ये किसकी देन है? ये आलिमी देन ने इन्वेंट किया है। लेंस को जो बनाया है ना, उस जमाने के आलिमी देन ने किया है, लेकिन अभी फुल स्टॉप हो गया, रुक गया है। तो लिहाजा हमारे फिर आने तक इंशाअल्लाह यहाँ स्कूल का काम भी होगा, और उसमें मैं यकीन रखता हूं कि मौलाना हुज़ैफा साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि यहाँ स्कूल भी होगा, और मदरसा तो है ही है, और दूर दूर से लोग आकर यहाँ तालीम हासिल करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।